Hello students, let us continue with the discussion for the MCQs of module number 4 from a syllabus. That should be the last module that we have, children. This module, children, that is termed as banking and financial market module that we have. Children, here we are going to cover about the entire thing related to the banking sector. Along with that, we'll be also talking about the insurance sector and the financial markets that are called as the money market and the capital market. So let's begin with the first chapter from module number 4. It's termed as banking. Children, question number 1. A scheduled bank is one which has क्या options दिए देख ले लो जरा यहाँ पे. Term deposit of 10 lakhs. क्या लिखा है? Term deposit of 10 lakhs with term deposit of 5 lakhs. Demand deposit of 5 lakhs. These are all irrelevant options, children. A scheduled bank, children, is one which is actually included in the second schedule of the Reserve Bank of India's RBI Act 1934. तो तभी बच्चों लोग रूल बनाया गया था कि any bank who has got a paid up capital and reserves not less than 5 lakhs and whose operations are carried out in such a way that they are not detrimental to the interests of the depositors. ऐसे banks को scheduled bank करके बोला जाता था. तो option A, children, is the most relevant one which actually talks about the capital of the bank being not less than 5 lakhs. That's the correct option, children. Question number 2. To promote financial inclusion on 28th August 2014, the following new scheme was introduced for dash. Options दिए, children. गरीबी हटाओ, वो तो इंदिरा गांधी के टाइम का पॉलिसी था बच्चों लोग. फिर आता है प्रधानमंत्री जन धन योजना. बच्चों लोग, दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री जन धन योजना. Children, there are lots of people in India who do not have a bank account, so they are not actually included into the banking sector. So government thought, why not include each and every family into the banking sector. इसलिए जीरो डिपॉजिट के साथ अकाउंट्स ओपन किए गए थे बच्चों लोग. उनको फ्री में इंश्योरेंस दिया गया था और जो भी आपके बेनिफिट्स रहेंगे दे विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू दिस पर्टिकुलर अकाउंट. सो प्रधानमंत्री जन धन योजना. और मुझे लगता है शॉर्टेस्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए PMJDY का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम भी दर्ज हुआ था तभी. ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स विद इन शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम. मनरेगा का स्कीम, चिल्ड्रन, इट्स ओल्ड वन एंड इट्स टोटली बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इसलिए सी वाला ऑप्शन रिलेवेंट नहीं है. ठीक है. अच्छा, डी, चिल्ड्रन, स्वच्छ भारत अभियान. दैट्स नथिंग टू डू विद इंक्लूसिव ग्रोथ. सो ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री जन धन योजना. Question number 3, children. Which one of the following scheme was introduced under operational technology? मतलब बैंक्स को एफिशिएंटली टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेट करने के लिए कौन कौन से स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे. तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, चिल्ड्रन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. इट शुड बी ओके. फिर मोबाइल बैंकिंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, चिल्ड्रन, एंड देन वी आल्सो हैव द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT बोलते हैं ना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. So मुझे लगता है all of the options are actually useful here, so we call them as all of the above. Question number 4. Financial inclusion aims at providing financial services to dash. तो चलो, लोगों को financially inclusive बनाने का मतलब क्या होता है कि जो लोग अपने मेन स्ट्रीम से, अपने बैंकिंग सेक्टर से अभी भी दूर है, जिनको पता नहीं होता बच्चों के लिए बैंकिंग क्या होता है. हाँ, तो ऐसे लोगों को हम लोग इंक्लूड करा. और ये लोग ज्यादातर कौन होते हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट तो होंगे नहीं, इंडियन इन्वेस्टर्स अब्रॉड तो होते नहीं है, एग्रीकल्चर को स्पेसिफिकली हम लोग बात नहीं करना चाहते. तो द आंसर, चिल्ड्रन, इज द पुअर पीपल. गवर्नमेंट का एम था कि हम लोग गरीब लोगों को फाइनेंशियली इंक्लूड करना चाहते थे बच्चों लोग. ओके, इट्स द पुअर पीपल. फिर क्वेश्चन नंबर 5. इन रिसेंट ईयर्स द नंबर ऑफ RRB मतलब बच्चों लोग रीजनल रूरल बैंक्स has increased, decreased, remain constant, been fluctuating. So the option, children, is decreased because they are not very efficient. They have got lack of capital. अच्छा, उनका area of operations होता है वो छोटा आता है. Not much of help is given by the government. So and commercial banks have been dominating in the recent past, children. और इसकी वजह से RRB जो होते हैं, जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, वो कम हो चुके हैं.
वर्चुअल बैंकिंग एम्स एट रेंडरिंग बैंक सर्विसेज थ्रू डैश। वर्चुअल बैंकिंग का मतलब आपको पता है, जैसे कि आजकल हम लोग वर्चुअल क्लासरूम्स है, फिर वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं ना अभी, तो व्हाट आर वी यूजिंग चिल्ड्रन? कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, राइट? अच्छा, सो इट्स नॉट ब्रांच एक्सपांशन। अच्छा, एडवांसिंग चीप क्रेडिट वुड बी नॉट ऑल्सो राइट ऑप्शन। अच्छा, लॉन्चिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल स्कीम्स भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो बचता क्या बच्चे लोग? यूज ऑफ आईटी सर्विस। मतलब बच्चे लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके जब हम लोग बैंकिंग सर्विसेज रेंडर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल बैंकिंग। And then children lastly they have asked for a full form for RTGS. Many of you who are using that having businesses, so they must be knowing RTGS. children पहले क्या होता था कि लाइक चेक ऑनर होने के लिए जो ज्यादा टाइम जाता था उसको हम लोग अभी रिड्यूस कर दिए NEFT के जरिए। फिर बिजनेस वाले लोग क्या यूज करते हैं? RTGS, दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ऑप्शन क्या बच्चों इसका? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मतलब जैसे ही चेक्स आते हैं बच्चों उसको जैसे आ गया रियल टाइम में उसको भेजा जाता है क्लियरिंग के लिए, ताकि ऑन द सेम डे चिल्ड्रन आपके फंड्स ट्रांसफर हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, देन गोइंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। चूज द करेक्ट आंसर एंड रीराइट दिस स्टेटमेंट। The IRDA Act was passed in the year dash 1999 में पास हुआ था बच्चों लोग। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक्ट करके बोलते हैं उसको। तो आई थिंक लाइक व्हेन दे वर इंट्रोड्यूसिंग ऑल द रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, they thought that it was very necessary that we reopen the insurance sector as well in India. So इसलिए 1999 में IRDA एक्ट पास किया गया था और टिल डेट बच्चों आज भी IRDA एक्ट के अंदर सब इंश्योरेंस कंपनीज को मॉनिटर एंड कंट्रोल किया जाता है। हाउ मच FDI इज अलाउड इन द इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ इंडिया? 49% FDI बच्चों लोग इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ किया गया है। हाउ मच? 49%. Which of the following committee was established to suggest insurance sector reforms? रंगनारायण कमेटी, ऐसा कुछ कमेटी है नहीं। रंगराजन कमेटी, राजाचला कमेटी बच्चों लोग इज नॉट रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर। नरसिम्हम कमेटी चिल्ड्रन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से था। तो बचता क्या है? मल्होत्रा कमेटी। बच्चों 1990s में जब इंश्योरेंस सेक्टर को रीओपन किया गया था और 1993 गवर्नमेंट अपॉइंटेड वन कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर RBI गवर्नर NR मल्होत्रा करके कुछ नाम था उनका, उनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी अपॉइंट किया गया था ताकि वो लोग इंश्योरेंस सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए बच्चों लोग कुछ सजेशंस दे सकते हैं। सो दैट वाज मल्होत्रा कमेटी इनटू द इंश्योरेंस सेक्टर। अच्छा, देन गोइंग अगेन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक चिल्ड्रन, दैट वुड बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट मनी मार्केट। Okay, which of the following is not the main player of Indian money market? Not करके बोला, तो चलो मनी मार्केट में गवर्नमेंट आता है। अच्छा, along with that RBI भी आती है, कमर्शियल बैंक्स भी आते हैं बच्चों लोग। अच्छा, तो कौन नहीं आता है बताओ? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ओके, दैट इज OTCEI करके बोलते हैं। दे आर नॉट द प्लेयर्स इन द मनी मार्केट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन पार्टिसिपेंट्स इन द कॉल मनी मार्केट? कॉल मनी मार्केट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? इंटर बैंक लेंडिंग। जब एक बैंक को अर्जेंटली पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बैंक किसी दूसरे बैंक से फिर किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसा बोरो करता है चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड एज द कॉल मनी मार्केट करके बोला था उसको। ओके, अच्छा, तो कौन कौन आते हैं उसमें बच्चों लोग? कमर्शियल बैंक्स आएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, प्राइमरी डीलर्स होते हैं बच्चों लोग, ऑथराइज्ड डीलर्स। मतलब क्या आंसर अपना क्या रहेगा बच्चों लोग? ऑल ऑफ द अबव, दे आर ऑल इंक्लूडेड इनटू द call money market. Which of the following money market instrument is used by commercial banks? Now hope so if you have just read through it you'll be knowing कि like government को अगर पैसा उठाना है मार्केट से तो लोग ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं। अच्छा, किसी कंपनी को बच्चों लोग मार्केट से पैसा उठाना होता है तो लोग क्या? कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं। लोगों को जो पैसा चाहिए रहता है बच्चों लोग हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं। वैसे जब कमर्शियल बैंक्स को पैसा बोरो करना होता है बच्चों लोग मार्केट से तो लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगे। क्या इशू किया जाता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दे आर कॉल्ड एज CDs। 1 लाख रुपीस के आसपास बनाएगा, इशू करते हो उसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और जब उसको रिडीम करते तो उसको पार पे रिडीम करते तो जो डिफरेंस रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर के लिए। Now which of the following measures absorb liquidity from the financial system?
बच्चों लोग यहाँ पे व्हाट आर दिस पीपल टॉकिंग अबाउट, तो सपोज टॉप पे बच्चों लोग होता है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। उसके नीचे पूरा अपना बैंकिंग सिस्टम आता है जहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कमर्शियल बैंक, और उसके नीचे होता है बच्चों लोग अपना एक्चुअल मार्केट, राइट। अच्छा, तो बच्चों लोग आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देती है, कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को पैसा देती है। तो किसके जरिए बच्चों लोग देखो, रेपो के जरिए, एमएसएफ के जरिए आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा देते हैं और फिर कमर्शियल बैंक पब्लिक को पैसा देते हैं, तो उससे बच्चों लोग मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये लोग क्या बोले बच्चों लोग, मार्केट से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास हथियार होता है बच्चों लोग रिवर्स रेपो। रेपो का मतलब क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स विल बी बोरोइंग मनी फ्रॉम आरबीआई बाय गिविंग सम सिक्योरिटीज एंड रीपर्चेसिंग दोस सेम सिक्योरिटीज एट अ लेटर डेट। रिवर्स रेपो में क्या होता है, आरबीआई बच्चों लोग कमर्शियल बैंक से जो एक्सेस लिक्विडिटी होता है वो बोरो कर लेता है, फिर कमर्शियल बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ रहता है वो लोग पैसे को किसको दे देते हैं, आरबीआई, फिर आरबीआई उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है। तो कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास जा रहा है, मतलब आरबीआई मार्केट का पैसा एब्जॉर्ब करके ले रही है। ओके, so the answer is reverse repo. अच्छा, then children, finally talking about the capital markets in India. Choose the correct answer and rewrite the statement. Capital market is a market for, children, let me tell you, there are two types of markets that we have, financial markets, एक होता है money market और एक होता है capital market, जहां पे borrowing और lending, children, is done for a period of less than 1 year, short term borrowing and lending, तो उसको हम लोग मनी मार्केट बोलते हैं। लेकिन वहीं पे चलो बोरोइंग एंड लैंडिंग इफ इट इज डन फॉर मोर देन 1 ईयर तो इट इज नोन एज कैपिटल मार्केट। सो आई थिंक द आंसर इज लॉन्ग टर्म फंड्स। क्या आंसर रहेगा, लॉन्ग टर्म फंड्स। नाउ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन डैश। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन डैश। FII मतलब फॉरेन के इंस्टीट्यूट जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनको कहां पे अलाउड होता है बच्चों लोग, अच्छा, ओनली इक्विटी शेयर्स करके दिया हुआ है, क्या दिया है, ओनली इक्विटी शेयर्स। अच्छा, फिर क्या दिया, ओनली डेप्ट मार्केट। तो मुझे लगता है चलो डेप्ट और इक्विटी दोनों में अलाउड होता है उनको इन्वेस्ट करना, और इसलिए अपना ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, म्यूचुअल फंड्स में FII इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकती है। अच्छा, देन म्यूचुअल फंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन कैपिटल मार्केट एज डैश। क्या बोला देखो बच्चों लोग, म्यूचुअल फंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। म्यूचुअल फंड्स मतलब आपको पता है बच्चों लोग, नॉर्मली बच्चों लोग एक छोटा सा इन्वेस्टर है, सपोज कि मुझे लगता है कि मुझे 1-2 हजार रुपए इन्वेस्ट करना है। अच्छा, अभी मैं कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जाता हूँ, मतलब स्टॉक मार्केट, कहाँ पे इन्वेस्ट करने का है, स्टॉक मार्केट। लेकिन बच्चों लोग 2-3 चीजें होती है, एक तो मेरे पास पैसा कम है, मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, अच्छा, और हर बार मैं वहां पे ध्यान नहीं रख सकता हूँ। तो एक काम करने का, आप सीधा स्टॉक मार्केट में डालने से अच्छा है कि आप अपना पैसा किसको दे दो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को दे देना। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स का पैसा लेते हैं, फिर उसको ना बच्चों लोग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, मतलब थोड़ा शेयर मार्केट, गोल्ड मार्केट या फिर रियल एस्टेट, और शेयर मार्केट में बच्चों IT कंपनीज, मतलब एक अलग अलग वेरीफाइड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने का। उसमें से म्यूचुअल फंड कुछ प्रॉफिट कमाता है, उसमें से लोग अपना खुद का कमीशन रख के फिर इन्वेस्टर का पैसा उसको वापस देता है अलॉन्ग विथ रिटर्न्स। मतलब एक्चुअली यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन कैपिटल मार्केट एज इन्वेस्टमेंट एवेन्यू फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। तो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर्स का पैसा जमा करने का काम कौन करता है बच्चों लोग, म्यूचुअल फंड्स। देन कंपल्सरीली डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो चिल्ड्रन वी हैव द वर्ड दैट इज कॉल्ड एज द गिल्ट एज्ड मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मार्केट है बच्चों उसको नाम ही दिया गया गिल्ट एज मार्केट। एक्चुअली वर्ड यूके से आता है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसे कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इशू करते थे, ठीक है, तो उसको गिल्ट एज मार्केट बोलते थे। तो इंडिया ने भी सेम नाम लिया हुआ है। गिल्ट एज्ड मार्केट इज अ मार्केट फॉर व्हाट इज नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड देयर, राइट। अच्छा, सो दैट्स द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट्स इन इंडिया। नाउ चिल्ड्रन, if you just realize the entire 4 modules that we study, पहला वाला मॉड्यूल्स तो बच्चों अपना पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन को लेके था। अच्छा, सेकेंड वाला मॉड्यूल चिल्ड्रन वी स्टडीड अबाउट एग्रीकल्चर, एंटायरली अबाउट एग्रीकल्चर। तीसरा वाला बच्चों इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, वो सब के बारे में था। और फोर्थ वाला मॉड्यूल जो है इट्स बेस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सो व्हाइल स्टडीइंग चिल्ड्रन वी नो कि लाइक हम लोग का MCQs ही पूछने वाले हैं, तो आप जितने भी
मतलब टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे उसमें से भी पढ़ोगे तो चलता है, अपने नोट्स से उसमें से पढ़ोगे तो भी काफी होता है। चलो हमने जो एमसीक्यूज डिस्कस किए उसको भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हो। चलो ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो यू कैन गेट देम क्लियर एनी टाइम। मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ चलो यूट्यूब पे, उसके नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, वहां पे कुछ भी आपको डाउट होता है, समझ में नहीं आता है, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करके ले सकते हैं। ठीक है, सो आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। So children, that's all with the MCQs for the fourth module that we have. So those who are preparing for the exams and all the best, perform nicely and crack it with some good marks. If you have got any doubts, any help that is required, we are always open to help you. Thank you very much. All the best everyone.